Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is today date is 1st February 2022 and I am teaching you chapter number 18 and name of the chapter our festivals. Okay, so India is also known as a land of festivals because many festivals are celebrated in our country. When we are talking about the festivals, so what we do in this festival, we enjoy this festival with our family members and with our friends and relatives. So at the time of a festival, uh, people wear new clothes, greet each other and eats lot of good food. And the another thing is that festival is enjoyed by the people of all age group, whether the person is young, old, all love to all enjoy the festivals. Okay, so when we are talking about the festivals, so our country is also known as the land of the festival. So now student, let's try to understand in this chapter what are the learning objectives of this chapter. Let's discuss that and after that I will explain you. So the what are the things which we are able to understand after studying this chapter, that is types of festival. Learning objective is types of festivals. And another thing which we will study, harvest festival. Harvest festival. Okay. So in this chapter, student, we will study different types of a festivals, and another important thing is the harvest festival also, and one more, that is your national festivals. So on these three topics, so when we are talking about different types of a festival in our country, so under these three different categories, one is the types of festival. It depends upon the religions. Okay, so types of festivals, harvest festival and national festival we will discuss in this chapter. Okay, so first of all we start with, when we are talking about the different types of a festival, see student, as we know that in our country the people belonging to under these three headings we will study the festival, that is types of festival. It depends upon the religions. Harvest festival, which is celebrated in all part of the country, and another is the national festival, which is also celebrated in all parts of the country. So one by one, so let do I give you a small summary of all these festival together, and then after that one by one I will explain you about all these festival. Okay, so see student, as we know that people belonging to different religions, okay, people belonging to different religions are living in our country. Okay, Hindus, different religion means in our country people belonging to different religion means Hindu, Muslim, Sikh, Christians, Buddhism, Jainism. So many people belonging to different religions are living in our country. So in every month of the year we celebrate festivals. Okay, because Hindus have their own religious festivals,
Muslims have their own religious festival, Christian also have their religious festival, Sikh they also have their religious festival. So that is the reason people belonging to different religions are living in our country. हमारी कंट्री में बेटा बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं. तो आप अगर देखोगे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो एवरी मंथ कोई ना कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता ही रहता है, किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग होता है. ठीक है, इसीलिए हमारी कंट्री को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला गया है. ठीक है, और इसका एक शॉर्टकट में अभी मैं डिटेल में सारा बताऊंगा, पहले शॉर्टकट में डिस्कस कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ फेस्टिवल यहाँ किस पे था, रिलीजियस फेस्टिवल. फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट मींस दैट आवर कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. सो एट द टाइम व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी इन द फील्ड, ठीक है, खेतों में हम लोग क्रॉप लगाते हैं. ठीक है, तो जब क्रॉप्स रेडी हो जाती हैं फील्ड में, मतलब टाइम आ जाता है कि अब उनकी कटिंग कर ली जाए, काट लिया जाए, तो उस खुशी में जो फार्मर्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. एंड ऐसा तो नहीं है इंडिया के एक पूरे इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री ये फेस्टिवल डिफरेंट नेम से मनाया जाता है. ठीक है, जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि इंडिया के मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वी सेलिब्रेट द सेम फेस्टिवल विच इज नोन एज हार्वेस्ट फेस्टिवल बाय डिफरेंट नेम्स. और नेशनल फेस्टिवल्स में ये देखो, अब देखो नेशनल फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. ठीक है, उसका रीजन, इसको नेशनल फेस्टिवल की कैटेगरी में इसलिए रखा गया, जैसे देखो बेटा, हिंदूज, पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन, दे हैव देयर ओन फेस्टिवल्स. ठीक है, और क्रिश्चियंस आल्सो हैव देयर ओन फेस्टिवल, सिख आल्सो हैव देयर ओन फेस्टिवल एंड मुस्लिम्स आल्सो हैव देयर ओन फेस्टिवल. तो अब देखो, इसका मतलब हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन के बहुत से लोग रहते हैं. तो ऐसे में कंट्री में यूनिटी कैसे बनी रहे, मेरी बात समझ लो. तो कुछ ऐसा फेस्टिवल भी होना चाहिए जिसको सारे कंट्री के लोग मिलके सेलिब्रेट करें. तो उन फेस्टिवल्स को किस कैटेगरी में रखा गया, नेशनल फेस्टिवल में. क्योंकि जब नेशनल फेस्टिवल की बात आएगी तो ना तो हम रिलीजन्स की बात करेंगे, ना तो हम कास्ट सिस्टम की बात करेंगे. नेशनल फेस्टिवल का मीनिंग ये होगा कि एनी पीपल हु इज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कोई भी पर्सन जो भारत का निवासी है, वो सब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे. तो इसलिए इस फेस्टिवल को किस कैटेगरी में रखा गया बेटा, दैट इज द नेशनल फेस्टिवल. ठीक है, क्योंकि फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ हिंदूज ही नहीं फ्रीडम स्ट्रगल में फाइट किए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल. बिफोर द फ्रीडम आल्सो देयर आर मेनी रिलीजन्स इन आवर कंट्री. फ्रीडम से पहले ही ये सारी रिलीजन हमारे कंट्री में थी, जो धर्म की हम बात कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया की फ्रीडम के लिए सिर्फ हिंदूज ने स्ट्रगल की थी. हाँ, वो बात अलग है कि हिंदूज की पॉपुलेशन बाकी रिलीजन के पॉपुलेशन से ज़्यादा थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही फ्रीडम स्ट्रगल में फाइट किए थे. पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स आल्सो, दे आल्सो fight or they also struggle for the freedom of our country, that is India. तो पूरी कंट्री में यूनिटी बनी रहे, लोग आपस में बाइंड रहे, मिलजुल कर रहे. तो इसके लिए एक कैटेगरी हमने और बनाई जिसको हमने क्या बोला, नेशनल फेस्टिवल बोला. ठीक है, जैसे कि when we got the freedom, तो we got the freedom on 15th अगस्त 1947. ठीक है, अब देखो हमें फ्रीडम कब मिली, 15 अगस्त 1947. तो इसको हमने नेशनल फेस्टिवल की कैटेगरी में रखा. क्यों, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट डे? रीजन है कि एट दिस डेट वी गेट आवर नेशन बिकम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ओके, दे लेफ्ट इंडिया, दे गो बैक and our country become a free nation on 15th August 1947. तो जब इसलिए इसको हमने नेशनल फेस्टिवल का नाम दिया. ठीक है, अब जब नेशनल फेस्टिवल है तो यहाँ हम ये नहीं देखते हैं बेटा कि हम किस रिलीजन के हैं, ये नेशनल फेस्टिवल है. हम सबने
पास्ट टाइम में स्ट्रगल की थी अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के। तो 15 अगस्त 1947 को इसलिए हमने किस कैटेगरी में रखा, नेशनल फेस्टिवल में, ठीक है। अब जब नेशनल फेस्टिवल की बात आती है बेटा, तो यहाँ हम धर्म के बेस पे नहीं कुछ बोलते, हम इंडियन हैं, हम इस कंट्री के सिटीजन हैं, निवासी हैं, हम इंडियन हैं। तो इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री पीपल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज दिस इज अ नेशनल फेस्टिवल। फिर है उसके बाद नेशनल फेस्टिवल में सेकंड हमने लिखा रिपब्लिक डे, 26 जनवरी। 26 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, ओके। 26 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे इसलिए बोला गया क्योंकि बेटा व्हेन द ब्रिटिश पीपल लेफ्ट द इंडिया, नाउ इट बिकम्स अ ग्रेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स हाउ टू रूल द कंट्री। देखो पहले हमारी कंट्री पे शासन कौन करते थे, ब्रिटिश करते थे। अब ब्रिटिश छोड़ के चले गए और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, उसमें हमारी कंट्री की पोजीशन 7 है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है। और जब ब्रिटिश रूल था उस समय 500 से ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे, कंट्री पार्ट्स में बटी हुई थी, ठीक है। तो इतनी बड़ी कंट्री पे शासन करने के लिए कुछ लॉ, रूल और रेगुलेशंस होने चाहिए ना। तो 26 जनवरी को क्या हुआ था, वी एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। तो ये एक बुक ऑफ लॉ है जिसमें सारी बातें क्लियरली लिखी गई हैं कि देश को शासन कैसे करना है, हाउ टू रूल द कंट्री, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर रिटन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो और ये कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में हुआ था। वी गॉट द फ्रीडम इन 1947 बट इट टेक मोर देन 2 years टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सारी कंट्रीज जो होती हैं सबके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तभी तो वो उस रूल से अपनी कंट्री पे शासन करते हैं। तो बेटा हमारी कंट्री जो इंडिया है, इस हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट है। ये वन वर्ड का क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो दैट इज ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। तो अब देखो इसलिए हमने 26 जनवरी को भी नेशनल फेस्टिवल बोला। अब देखो आप लोग देखते होंगे आपके स्कूल में, अभी तो खैर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब नेशनल फेस्टिवल, अभी पहले ये समझ लो क्या है, ये 26 जनवरी भी नेशनल फेस्टिवल हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आया 2 अक्टूबर। दिस इज आल्सो नोन एज द नेशनल फेस्टिवल। इसको भी हमने किस कैटेगरी में रखा, नेशनल फेस्टिवल की कैटेगरी में रखा। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि दिस इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, ओके। सो एट द टाइम when Indians struggling for their freedom against the British, तो उस समय जब 1920 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, तो पहले तो उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने आंदोलन नहीं स्टार्ट कर दिए थे, पहले वो पूरे देश के ईच एंड एवरी पार्ट्स में घूमने गए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने देखा कि लोगों की क्या कंडीशन है, तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि लोगों की कंडीशन बहुत बुरी है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा कंडीशन खराब है थी तो गरीब लोगों की ब्रिटिश रूल में। देन ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सो इन दैट टाइम गांधी जी एक ऐसे लीडर थे, ही people belonging to different religion, they all follow गांधी जी। मतलब आपसे मैंने बताया ना कि रिलीजन तो इंडिया में कास्ट सिस्टम और रिलीजन सिस्टम तो जब ब्रिटिश रूल था तब भी इंडिया में था, ये कोई नया अभी नहीं आया है। तो लोग जो थे उस समय गांधी जी को सारी कास्ट के लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे,
मतलब पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन दे फॉलो गांधी जी बिकॉज ही फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ए नॉन वायलेंस। क्योंकि गांधी जी ने जो अंग्रेजों से लड़ाई की थी ना बेटा, उन्होंने कौन सा रास्ता चुना था? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब उसमें कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की जान नहीं जाएगी, किसी को मारा पीटा नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि वायलेंस मतलब होता है जहां पे लोग मरते भी हैं, खून खराबा होता है, मार पिटाई होती है, तो वो वायलेंस होता है। तो गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता फॉलो किया था। तो गांधी जी की रिस्पेक्ट हिंदूज नहीं, अदर धर्म के लोग भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे एंड दे फॉलो गांधी जी। तो दैट इज द रीजन गांधी जी को बापू भी बोला जाता था और उन्हें महात्मा गांधी की भी उपाधि मिली थी। इसलिए गांधी जी के बर्थडे को भी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती को भी हमने किस कैटेगरी में रखा बेटा? हमने नेशनल फेस्टिवल की कैटेगरी में रखा, ठीक है। अब देखो 1 बाय 1 हम सारे फेस्टिवल्स डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? दैट इज द मंथ ऑफ अगस्त एंड डेट इज 15 अगस्त। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर, ठीक है। वाई? अब इसका रीजन क्या था? आई होप रीजन सबको समझ में आ गया होगा। बिकॉज दिस डे वी गेट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है। All we remember all those brave people who sacrificed their life for the freedom of our country. What does this line mean? Sacrifice. देखो बेटा अभी 20 चैप्टर में भी मैं ये चीज तुम्हें लोग को आएगी जब मैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो उसमें सबसे ऊपर जो केसरिया रंग है, सैफ्रॉन कलर है, उसका मीनिंग ही होता है सैक्रिफाइस। मैनी ऑफ द पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द फ्रीडम। तो बेटा इंग्लिश, ये जो ब्रिटिश थे ये इतने अच्छे नहीं थे कि इन्होंने बोल दिया ठीक है अब हम बहुत दिन रह गए इंडिया पे, बहुत दिन हमने रूल कर लिया, चलो अब हम अपने देश चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ था, हमें बहुत लड़ना पड़ा था। तो लास्ट में व्हेन दे आर अनेबल टू कंट्रोल द पीपल ऑफ इंडिया देन दे हैव टू लेफ्ट दिस कंट्री। तो इसमें बहुत से लोगों की जान गई थी, ठीक है। बहुत से ब्रिटिश पीपल्स ने जगह जगह पे जो इंडियंस थे जो फ्रीडम स्ट्रगल में फाइट कर रहे थे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, बहुतों के संग बहुत वायलेंस किया था, बहुत जगह पे गोलियां बुलेट्स चलाई थी, बहुत से लोगों की जानें चली गई थी। तो दैट इज द रीजन हम 15 अगस्त को उन लोगों को भी याद करते हैं जो पास्ट हिस्ट्री में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, उन बहादुर लोगों को भी, ब्रेव पीपल्स को भी हम रिमेंबर करते हैं इस दिन, जिन्होंने अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए अपनी जान भी दे दी, ठीक है। तो दैट इज 15 अगस्त। अब देखो अब 15 अगस्त में क्या होता है बेटा? 15 अगस्त में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री होस्टेड द फ्लैग एट रेड फोर्ट। रेड फोर्ट है बेटा न्यू दिल्ली में, लाल किला इसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में रेड फोर्ट बोलते हैं। आई होप कुछ बच्चे गए भी होंगे, उन्होंने देखा भी होगा। तो हु होस्टेड द फ्लैग? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के। सो ऑन 15 अगस्त every year the prime minister of our country hosted the national flag at red fort। कहां पे नेशनल फ्लैग लगाते हैं? रेड फोर्ट पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट he speak to the nation giving the people some special message also, ठीक है। सो एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर आवर कंट्री पीपल्स,
because this is the day when we get the freedom from the British rule. Okay, thank you student.